You can say that an expression is a sentence with a minimum of two numbers and at least one mathematical operation. It is not compulsory that there should be at least there should be only two numbers and only one operation. We have seen something like that: 10 plus 2 multiplied by 3 divided by 4. So there are so many operations and there are so many operands as well, right? Or there are so many numbers as well. So there are two definitions. जो भी आप लोगों को easy लगे, you can just refer that. The first one says that it is an entity that can get evaluated to determine its value. Whereas the second part, it says that an expression is a sentence with a minimum of two numbers and at least one math operation. So what should be the math operations? Math operations can be addition, multiplication, subtraction, division or anything, right? ये कुछ भी हो सकता है, ये power of भी हो सकता है. सपोज आप लोगों को फाइंड आउट करना है 2 पावर 2, 2 पावर 2 कितना होगा, 4 होगा. वी नो दैट, राइट? सो पावर इट इज आल्सो वन ऑफ द ऑपरेशन. सो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कैन बी एनीथिंग, राइट? एंड द स्ट्रक्चर ऑफ एक्सप्रेशन, the structure of expression is something like that. Expression is equals to number, math operator and number. So there always should be one mathematical operator and there should be at least minimum, right? There should be minimum two numbers in an expression. I hope so this part is clear. Okay, the easiest part. So expression evaluation ये कैसे solve होता है? तो इसको solve करने के लिए हम लोगों को stack का use करना पड़ता है. कैसे करेंगे? We will see, right? Just see the diagram. You can easily understand this part. What is an expression actually? So expression it is, this is something, this is a result, right? It can be anything. Is equals to a plus b multiplication c. So what is a, b and c? A, B and C, this can be anything. This can be numbers, right? So A, B, C are three numbers, whereas plus and the multiplication, these are the two operations. These are the two mathematical operations. So मैं क्या बोल सकती हूँ? This result, this is an expression, right? किस चीज का combination है ये? The expression, it is a combination of operands and the operators. What do you mean by the operands? Operands मतलब ऐसी चीज, ऐसी कोई भी ऐसा कोई भी नंबर कि जिसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द ऑपरेटर? ऑपरेटर ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, राइट? प्लस आप लोगों को परफॉर्म करना है, राइट? यू नीड टू ऐड टू नंबर्स. तो वो दो नंबर्स को ऐड करने के लिए व्हाट यू विल नीड सम ऑपरेटर, यू विल नीड सम फंक्शन. आपको कुछ करना है, एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, तो यू विल नीड ऑपरेटर, राइट? सो ऑपरेटर क्या करता है? जो भी नंबर्स आप दोगे, जो भी ऑपरेंड्स आप देने वाले हो, उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, राइट? एंड व्हाट इज ऑपरेंड? Operand, these are nothing but the numbers on which operator will operate. Is this clear? On the left hand side you can see this is a result, right? तो मैंने पहले definition में क्या बोला था? Expression, it is an entity which can get evaluated to find out the result. So हम लोग क्या evaluate कर रहे हैं? Towards the right hand side हम लोगों को जो भी values दिख रही है, we are going to evaluate this part so that we can find out this result, right? So expression is format में you can see. This is the format, this is the syntax for expression. अभी expression हम लोगों ने सिर्फ इसी टाइप में देखे, okay? But there are different types of expression as well. इसमें किसी को डाउट है? If anybody is having any doubt in this particular part, expression को define करने के लिए, so expression it is a combination, you can say it is a combination of operands and the operator, right? And what are the operators? Operators are which will perform something, right? And operands are on which you will perform the operation. So I think this part is clear. Now the moving forward, in this particular stack, right? Or in a computer, we can say that there are three types of three types of expression. First one is called as the infix, second is a prefix, and the last one is called as a postfix expression. So what do you mean by the infix expression? Name suggest कर रहा है, ये name के ऊपर से you can just remember. Infix का मतलब होगा in between, pre का मतलब होगा पहले, और पोस्ट का मतलब होगा बाद में. और किन के पोजीशन के ऊपर वी आर गिविंग दिस नेम? तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द ऑपरेटर वी आर गोइंग टू नेम दिस एक्सप्रेशन. अगर मैंने ऐसे कुछ लिखा है प्लस ए बी, ओके, व्हाट आई हैव रिटन समथिंग लाइक दैट, प्लस ए बी, ओके? तो प्लस मैंने लिखा है पहले, सो प्लस ए बी. तो आपका ऑपरेशन, आपका ऑपरेटर कहाँ पे आ रहा है? पहले आ रहा है. तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को व्हाट आई विल कॉल दिस एज अ प्रीफिक्स एक्सप्रेशन. Suppose I have written something like that, A, B, और उसके बाद में मैंने प्लस ऑपरेटर जो है मैंने सबसे लास्ट में दिया है. तो ऑपरेटर कहाँ पे आ रहा है? सबसे लास्ट में. तो इसको क्या बोलेंगे आप लोग? पोस्ट फिक्स. और मैंने ऐसा कुछ लिखा है, सपोज A प्लस B. तो आपका प्लस ऑपरेशन कहाँ पे आ रहा है? तो आपका प्लस ऑपरेशन आ रहा है इन बिटवीन A एंड B.
तो मैं क्या बोलूंगी, दिस इज अ इनफिक्स ऑपरेशन। तो जहां पे आप ऑपरेटर लिखते हो, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोगों ने एक्सप्रेशन को अलग अलग नेम दे दिए, राइट। अगर ऑपरेटर पहले आता है तो उसको बोलेंगे प्रीफिक्स, अगर बाद में आता है तो उसको बोलेंगे पोस्टफिक्स, और अगर दो ऑपरेंट्स के बीच में आता है तो वी विल कॉल दिस एज अ infix expression. Okay, we will call that as an infix expression. Just see the first line, infix notation. तो infix notation का मीनिंग क्या होगा कि जो भी ऑपरेटर होगा, that operator will be in between the two operands. x और y क्या है आपके, these are the two operands, और प्लस क्या है आपका ऑपरेशन। सो ऑपरेशन बीच में आ रहा है तो मैं इसको क्या बोलूंगी, infix. Now the postfix notation, ये नाम ना याद रखना, और अगर आज के लेक्चर के लिए कोई पेन और नोटबुक लेके नहीं बैठा है तो प्लीज मैं जब बोलूंगी टुडे यू नीड टू सॉल्व समथिंग, ओके, हम लोगों को आज ये पूरा सॉल्व करना है, तो एक पेंसिल और एक पेन और एक नोटबुक आप लोगों को लगेगी, ओके। और ये जो नेम्स मैं बता रही हूँ, ये नेम्स भी आप लोगों को याद रखने हैं। सो व्हाट डू मीन बाय द पोस्टफिक्स नोटेशन? तो पोस्टफिक्स नोटेशन को ही बोला जाता है रिवर्स पॉलिश नोटेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ओके, रिवर्स पॉलिश नोटेशन। तो रिवर्स पॉलिश नोटेशन का मतलब भी क्या होता है, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, और इसका फॉर्म कैसे होता है, तो जो भी ऑपरेटर आपका होगा दैट विल बी एट द लास्ट, ओके, इन द लास्ट। तो इन द लास्ट में क्या आ रहा है आपका, प्लस सिंबल आ रहा है, तो ये एक्सप्रेशन, ये नोटेशन कौन सा हो जाएगा, पोस्टफिक्स। और अगर आपका ऑपरेटर पहले आ रहा है तो उस नोटेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस विल बी कॉल्ड एज अ प्रीफिक्स नोटेशन, और प्रीफिक्स नोटेशन को ही बोला जाता है पॉलिश नोटेशन, ओके। तो कितने टाइप के एक्सप्रेशंस यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू सी 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस, right? Expression notations. First one, infix. Second one is a postfix, and third one is a prefix. किनके basis पे we are saying that this is infix, prefix, postfix? So on the basis of a position of operator, we are going to term these expressions whether they are infix, prefix or the postfix, right? Operator बीच में आ रहा है तो this will be called as infix, बाद में आ रहा है तो it will be called as a postfix, और पहले आ रहा है तो it will be called as a prefix. Right? So this is about the infix, prefix and the postfix expression. अब इनकी जरूरत क्यों है? Why we need to study this, right? This is I think a very important question. अगर समझ में नहीं आएगा कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं तो हम लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि उसका यूज क्या होता है, राइट? पहले हम लोग we will just see the infix notation, prefix and the postfix किस तरीके से काम होता है. Have you heard about the operator precedence? Have you heard about operator precedence? Anyone? I think but सबको ही पता होगा ऑपरेटर, यस, तो यस, क्या होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंस? पहले क्या सॉल्व होता है? ब्रैकेट्स, यस, ब्रैकेट्स, उसके बाद में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलो, इन शॉर्ट बोर्ड मास। सबसे पहले जो आपका सॉल्व होगा दैट विल बी योर ब्रैकेट्स, राइट, वेदर इट इज अ कर्ली ब्रेस और वेदर इट इज राउंड ब्रैकेट और द स्क्वायर ब्रैकेट। उसके बाद में आता है आपका पावर, ओके, रेज टू जो बोलते हैं ना हम लोग, दैट विल बी सॉल्व। उसके बाद में होगा आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, उसके बाद में होगा प्लस एंड माइनस। सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ ऑपरेटर प्रेसिडेंस। और कोई भी एक्सप्रेशन अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड द ऑपरेटर प्रेसिडेंस, okay. abhi you can see on the screen there is one expression, right? That expression is a multiplication in bracket b plus c divided by d. Just tell me which operation will perform first. कौन सा operation first perform होगा? b plus c, bracket वाला, right? So first of all you will be solving b plus c. So what is this? मतलब किसके basis पे we are saying this? So we are saying this on the basis of operator precedence, right? तो ये जो चीज है ना इनफिक्स वाला नोटेशन, इनफिक्स नोटेशंस आर वेरी इजी फॉर ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड. दिस इज वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड बिकॉज हम लोगों को दिमाग है, वी आर हैविंग अ माइंड, वी कैन थिंक एंड वी नो द ऑपरेटर प्रेसिडेंस थिंग. अभी मैं कंप्यूटर को ऐसा कुछ दे देती हूँ, राइट? हम लोग कैलकुलेटर में ऐसे ही लिखते हैं, हम ऐसे ही देते हैं ना, 10 मल्टीप्लीकेशन इन ब्रैकेट 2 + 3 डिवाइडेड बाय 4. और कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा, कैलकुलेटर को पता कैसे चलेगा कि कौन सा एक्सप्रेशन पहले, कौन सा ऑपरेटर पहले सॉल्व करना है? बिकॉज दे डोंट हैव माइंड, राइट? कंप्यूटर को दिमाग नहीं है. हम लोग जो उसको प्रोग्राम देते हैं, whatever instructions we provide to the computer, on the basis of that computer will take some decisions, right? तो उसके बेसिस पे उसको कुछ डिसीजन लेने, तो ये डिसीजंस लेने के लिए भी वो प्रोग्राम्स, दैट इज अ वेरी हेक्टिक टास्क फॉर द कंप्यूटर टू डिसाइड. तो इसके लिए इनफिक्स एक्सप्रेशंस are best for the humans, but these are not good for the computers, right? तो इसकी वजह से we need to solve
prefix expression and the postfix expression. So prefix and the postfix expressions are not for us, but these are for the computer. Okay, आप लोग कोई भी कंप्यूटर में कोई भी एक्सप्रेशंस देते हो तो वो एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होता है, तो वो एक्सप्रेशन सबसे पहले इनफिक्स से प्रीफिक्स में या पोस्टफिक्स में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में ही कंप्यूटर उसका क्या करता है, इवैल्यूएशन स्टार्ट करता है. तो ईच एंड एवरी टाइम और आपको ये ध्यान में रखना है कि इनफिक्स नोटेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो व्हाट यू विल नीड द रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी. ओके, रूल्स जो होता है ना आपका प्रेसिडेंस, वो प्रेसिडेंस आप लोगों को याद रखना ही पड़ता है. और जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो ऑपरेशन ईच एंड एवरी टाइम कैसे परफॉर्म होता है, तो दे विल बी परफॉर्म फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट. ओके, I'm not going in detail with this infix expression. Okay, we will I'm just moving forward with the next part. So infix notation के लिए क्या क्या जरूरी है, तो infix notation के लिए आपको ऑपरेटर का प्रेसिडेंस मतलब पता होना, it is very important, right? और उसका जो सॉल्व होता है that will be solved from left to the right. Remember this part. Next part it is postfix notation, right? हम लोग देखेंगे इसको सॉल्व कैसे करना है. नाउ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इतना देख लो कि पोस्टफिक्स नोटेशन में क्या हो रहा है. तो पहला जो है दैट इज इनफिक्स नोटेशन. तो इनफिक्स नोटेशन का पोस्टफिक्स नोटेशन क्या आ रहा है, तो पोस्टफिक्स के अंदर मैंने सारे के सारे ऑपरेंड्स पहले लिख लिए. यू कैन सी ए बी सी, और उसके बाद में व्हाट आई एम राइटिंग, उसके बाद में आई एम राइटिंग द ऑपरेटर्स. तो ऑपरेटर्स कौन से है, प्लस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, डी एंड द डिवीजन. इसका मतलब क्या होगा ना, इसको सॉल्व कैसे करेगा, अगर आप ये किसी मशीन को दे रहे हो तो सबसे पहले ये सॉल्व करेगा प्लस सिंबल. ओके, बिकॉज ये जो ऑपरेटर्स होते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन, ये पोस्टफिक्स नोटेशन उसके लेफ्ट हैंड में जो भी ऑपरेंड्स आता है ना उनको सबसे पहले सॉल्व करते हैं. तो प्लस के बाजू में कौन से ऑपरेंड्स आ रहे हैं, तो प्लस के बाजू में दो ऑपरेंड्स आ रहे हैं, दैट इज बी एंड सी. तो सबसे पहला ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने वाला है, तो फर्स्ट ऑपरेशन दैट विल गेट परफॉर्म इट विल बी प्लस. और इन दोनों के बीच में ये प्लस होगा तो बी और सी के बीच में प्लस होगा, राइट? सो बी प्लस सी, दिस इज द फर्स्ट पार्ट दैट विल गेट इवैल्यूएटेड. अब इसके बाद में क्या होगा, यू हैव डन विद दिस पार्ट, राइट? यू हैव डन विद ऑल दिस पार्ट. तो अभी क्या बच रहा है, तो अभी नाउ यू आर हैविंग द मल्टीप्लिकेशन. मैंने पहले बोला कि पोस्टफिक्स ऑपरेशन में कैसे काम होता है. आई एम जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग दिस बीसी वैल्यू विद सम एक्स वैल्यू. सो अगेन आई एम राइटिंग दिस पार्ट दैट इज ए, राइट? उसके बाद में है आपका x के बाद में है आपका मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में है d, और d के बाद में क्या है आपका डिवीजन. ओके, अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सॉल्व कैसे होता है, तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के लेफ्ट हैंड में जो भी ऑपरेंड्स होता है वो ऑपरेंड्स पे ये वर्क करता है. तो मल्टीप्लिकेशन के लेफ्ट में क्या है, a एंड x. तो अभी नेक्स्ट ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होगा, तो नेक्स्ट ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा दैट विल बी a, राइट? मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में क्या होगा आपका x. So again I'm substituting some value for this. Suppose I'm just using y over here. अब क्या होगा आपके पास में, तो now you will be having y, then d, और d के लास्ट में क्या होगा, तो d के लास्ट में होगा division. So right now we are having only remaining with only one operator, right? That is the division. तो अभी लास्ट का ऑपरेशन जो होगा वो किन दो ऑपरेंड्स के बीच में परफॉर्म होगा, तो y and d, and this will be something like that, y divided by d. अब ये मैं बता रही हूँ, ओके, what I am saying right now. अब ये मुझे परफॉर्म करने के लिए मुझे भी प्रेसिडेंस याद रखने की जरूरत है. डू आई नीड टू रिमेंबर द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर, कि भाई पहले प्लस होगा, फिर पहले ब्रैकेट होगा, फिर मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर डिवीजन होगा, ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत है मुझे लगी? मैंने ऑपरेटर के प्रेसिडेंस के एक बार भी बात की नहीं, नो मैम, राइट? तो दिस इज द वे कंप्यूटर कोई भी एक्सप्रेशन को क्या करता है, सॉल्व करता है. तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, कोई भी इनफिक्स एक्सप्रेशन अगर हम लोग दे रहे कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करेगा, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेगा, इनटू द पोस्टफिक्स नोटेशन. ओके, और एक बार उसको पोस्टफिक्स नोटेशन के अंदर ये कन्वर्ट करेगा तो उसके बाद में वो पर्टिकुलर एग्जांपल इवैल्यूएट करने के लिए कंप्यूटर को सब इजी जाएगा. गेटिंग? तो इनफिक्स एक्सप्रेशन इट इज फॉर अस, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इट इज फॉर द कंप्यूटर. सेम द प्रीफिक्स भी यूज करता है, बट प्रीफिक्स से ज्यादा जो यूज होता है, राइट, एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन के लिए मशीन के अंदर, दैट विल बी द पोस्टफिक्स नोटेशन. आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा है, राइट? तो इनफिक्स हमारे लिए होता है, वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन रीड, ओके, बट कंप्यूटर रीड नहीं कर सकता है, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस एंड ऑल दोस थिंग. तो उसकी वजह से हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो उसको, ओके, जस्ट अ मिनट, तो विल जस्ट कन्वर्ट द इनफिक्स नोटेशन टू द पोस्टफिक्स, और उसके बाद में हम लोग उसको क्या करेंगे, वो कंप्यूटर उसको सॉल्व करेगा. यस, रोल नंबर 47.
सॉरी मैम, गलती से हो गया था। ओके ओके, अभी अभी मैंने जो बताया इसमें किसी को डाउट है? शुड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड? Yes, ma'am. Okay, so this is a postfix notation, right? Next part, it is called as a prefix notation. तो prefix में क्या होगा? तो जो भी operators होंगे, that operators will be before the operands. postfix में बाद में आते हैं, अभी पहले आ जाएंगे. So पहले क्या है? division, division के बाद में जा रहा है multiplication, उसके बाद में जा रहा है a, उसके बाद में जा रहा है plus, उसके बाद में जाएगा bc और उसके बाद में जाएगा d. Okay, अभी prefix notation कैसे वर्क करता है? तो प्रीफिक्स नोटेशन को वर्क करने के लिए मैंने पोस्टफिक्स में हम लोगों ने देखा था कि जो भी ऑपरेटर होता है वो ऑपरेटर राइट में आता है. अब यहाँ पे जो भी ऑपरेटर होगा वो लेफ्ट में आएगा. ओके, दैट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट. तो यहाँ पे सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म होने वाला है? बीसी प्लस बीसीडी. प्लस बीसीडी हो गया, इसके बाद में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका? दैट विल बी द मल्टीप्लिकेशन, राइट. और सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा आपका? डिवीजन. सेम प्रोसीजर है. तो प्रीफिक्स एंड द पोस्टफिक्स नोटेशन, दिस आर फॉर द कंप्यूटर्स, दिस आर नॉट फॉर अस. और यही एक रीजन है कि अगर आप लोगों को कोई ऐसा कोड दिया जाता है कि आप लोगों को कन्वर्ट करने के लिए बोला जाता है, so you need to understand the algorithm, and that is the need for this particular application, right? Applications of stack. Now I'm just okay, so why postfix and the prefix expressions are faster than the infix? Postfix और prefix जो होते हैं ना, this operator these expressions are very fast as compared to the infix expression. Why? Because infix expression को आपको solve करने के लिए you need to understand the operator precedence. ओके, और एट अ ग्लांस मैं सिर्फ ऑपरेटर को या ऑपरेंड्स को देख के मैं डायरेक्टली उन पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकती हूँ. आई विल नीड समथिंग. what I will need to scan the whole expression. सबसे पहले मुझे पूरा का पूरा एक्सप्रेशन पहले देखना पड़ेगा. उसके बाद में आई कैन डिसाइड कि भाई कौन सा ऑपरेटर पहले आ रहा है, और जो ऑपरेटर सपोज वहां पे कोई करली ब्रेस है, वहां पे कोई राउंड ब्रैकेट है, वहां पे कोई स्क्वायर ब्रैकेट है, तो मैं डिसाइड करूंगी कि आई नीड टू सॉल्व द ब्रैकेट फर्स्ट. उसके बाद में अगर कोई रेस टू आ रहा है तो आई विल नीड टू सॉल्व दैट वन. ओके, सो एट अ टाइम जब भी कभी आपको कोई इनफिक्स एक्सप्रेशन देता है तो आपको वो पूरा का पूरा स्कैन करना पड़ेगा. आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस ध्यान में रखना पड़ेगा, और उसके बाद में यू हैव टू मेक सम डिसीजन. So this is very time consuming task, right, as compared to the postfix and the prefix. postfix और prefix में कुछ देखना ही नहीं है, right. postfix में देखना है कि उसके लेफ्ट हैंड में जो भी कोई ऑपरेटर होगा, सॉरी राइट हैंड में वहां पे उसको परफॉर्म करना है. और अगर प्रीफिक्स की बात करें तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी ऑपरेटर होगा वो ऑपरेटर राइट हैंड साइड पे जो भी ऑपरेंड्स होंगे उन पे परफॉर्म करना है. So that is the reason why the postfix and the prefix expressions are faster than the infix expression. Okay, infix expression mein you need to consider the operator precedence, right, whereas in a postfix and the prefix there is no need for you to consider the operator precedence, right. So that is the reason why the postfix prefix are faster than the infix expression. Now these are some of the parts, right. हाँ मैम, अगर हम कोडिंग करते टाइम अगर हम जो हम लिख रहे हैं मतलब ऑपरेटर्स और ऑपरेंड, अगर हम उसको पोस्टफिक्स में लिखे तो कंपाइल जल्दी होगा? यस, अगर आप यू कैन जस्ट सी में कोई प्रोग्राम भी करते हो ना, और अगर आप उसको रन करके भी देखोगे ना तो नीचे टाइम पोस्टफिक्स के लिए कम आएगा. बिकॉज बैकएंड में क्या होता है, अगर आप कोई भी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन उसको दे रहे हो, ओके, तो वो प्रीफिक्स सॉरी इनफिक्स दे रहे हो, तो उस इनफिक्स को वो कन्वर्ट करेगा पोस्टफिक्स के अंदर, उसके बाद में ही वो रन होता है, राइट. देयर विल बी अ टाइम. थैंक यू. तो डाउट है यहाँ पे? पूछा करो आप लोग. नो मैम. ओके, तो द पोस्टफिक्स और द प्रीफिक्स के बारे में पहले ही बोला मैंने कि जब भी कभी आप कोई भी एक्सप्रेशन की बात करते हो, ओके, तो वो पोस्टफिक्स से या प्रीफिक्स ऑपरेशन होगा, उसको आप लोगों को इवैल्यूएट करना पड़ेगा. ओके, तो वो दैट इज द फर्स्ट, these are the applications of what you are seeing right now on the screen. These are the applications of stack. तो स्टैक एक्चुअली यूज कहाँ पे होता है? हम लोगों ने अभी तक सिर्फ बात की एक्सप्रेशंस की, राइट, टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस की. अभी स्टैक कहाँ पे यूज होता है? तो अगर मैं कोई भी आप लोगों को इनफिक्स का एक्सप्रेशन दे दूं, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन आप लोगों को सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आइदर टू द पोस्टफिक्स और द प्रीफिक्स. तो ये पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट कौन करता है? तो ये कन्वर्ट होता है विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक. वी विल सी दिस, राइट. ये विद द हेल्प ऑफ अ स्टैक यू कैन कन्वर्ट.
और एक बार अगर आपके पास पे मैथमेटिकल टर्म है लाइक 1 + 2 डिवाइडेड बाय 3 और समथिंग लाइक दैट, तो वो पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट करने के बाद में यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर, यू नीड टू इवैल्यूएट दैट, राइट? तो वो इवैल्यूएट करने के लिए भी यूज में क्या आता है, तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज में आता है। नेक्स्ट वन, before I'm not going to explain this part right now, okay? मैं पहले आप लोगों को सिखा दूंगी कि कन्वर्ट कैसे करना है, उसके बाद में हम लोग ये एल्गोरिथम देखेंगे। बिकॉज अभी ये एल्गोरिथम देखोगे तो आपको लगेगा बाप रे कितना कितना डिफिकल्ट है, राइट? दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू कन्वर्ट, ओके? अगर मैं कोई भी इनफिक्स दे रही हूँ तो उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कैसे करना है पहले वो देखेंगे, उसके बाद में आई विल एक्सप्लेन दिस एल्गोरिथम, ओके? इन दिस लेक्चर और इन द नेक्स्ट लेक्चर we will see how to convert, right? Now we will see how to convert. This is very difficult example. Let me start with another small example. I'm going to share the next screen. Just wait for 2 minutes. Okay. This is the question, right? This is a very simple question. Just tell me whether this is a infix, prefix or the postfix. This term, ये कौन से टाइप का एक्सप्रेशन है? infix. Infix. Expression, right? तो पहले what I will teach you how to convert this infix expression to the postfix. हम लोगों को पहले postfix देखना है, right? postfix में क्या होता है? ऑपरेंट्स के बाद में आएंगे, okay? तो मैं बता रही हूँ ये नहीं होगा, लेकिन जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग ये इस तरीके से होगा कुछ, ए बी मल्टीप्लिकेशन, सी डी डिवीजन प्लस समथिंग लाइक दैट। सो हम लोगों को ये कन्वर्ट करना है इनटू द पोस्टफिक्स नोटेशन। अभी क्या करना है, ऐसा कोई भी प्रॉब्लम अगर आप लोगों का आता है तो वो प्रॉब्लम को आप लोगों को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। 3 पार्ट कौन से होंगे? तो पहला होगा सिंबल, सेकंड वन विल बी द स्टैक एंड लास्ट वन विल बी द आउटपुट, ओके? कोई भी अगर आप लोगों को ऐसा एक्सप्रेशन मिलता है, you need to convert this expression into 3 parts. फर्स्ट पार्ट होगा सिंबल, सेकंड होगा आपका स्टैक और लास्ट वाला होगा आपका आउटपुट। व्हाट इज अ सिंबल? तो सिंबल के अंदर जो भी एक्सप्रेशन आप लोगों को मिलते हैं वो एक्सप्रेशन आप लोगों को लाइन बाय लाइन इंसर्ट करना है। आई एम सेइंग लाइन बाय लाइन। तो सबसे पहला कौन सा कैरेक्टर आया है? 1, राइट? सॉरी ए। तो ए सबसे पहले आई विल बी इंसर्टिंग, ओके? उसके बाद में क्या रहा है? मल्टीप्लिकेशन। सो नेक्स्ट आई विल बी इंसर्टिंग द मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या आएगा? प्लस, सॉरी बी, सो बी, देन प्लस सी, डिवीजन एंड द डी। सो व्हाट इज अ सिंबल? जस्ट अ मिनट, okay, right? So what is the symbol? In the symbol you will be adding what? You will be adding the characters. You will be adding the characters one by one. Just a minute, huh? Row number 45, just hold on for 2 to 3 minutes, okay? So what is the symbol? These are the characters that you are going to insert line by line. What is the stack? Always remember, huh? stack के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर्स ही इंसर्ट करने हैं, ओके? स्टैक के अंदर यू आर गोइंग टू इंसर्ट ऑपरेटर्स ओनली। अभी ये एक्सप्रेशन के अंदर ऑपरेटर्स कौन से? तो ऑपरेटर्स है मल्टीप्लिकेशन, प्लस एंड द डिवीजन। उसके अलावा एक भी सिंबल, एक भी कैरेक्टर मैं स्टैक के अंदर इंसर्ट नहीं करने वाली हूँ। क्लियर है ये चीज? ओके? कोई भी एक्सप्रेशन मिल रहा है 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सिंबल, स्टैक और आउटपुट में। सिंबल के अंदर आई विल बी इंसर्टिंग ईच एंड एवरी कैरेक्टर लाइन बाय लाइन। स्टैक के अंदर आई एम एबल टू इंसर्ट ओनली एंड ओनली ऑपरेटर, और आउटपुट के अंदर यू कैन इंसर्ट द कैरेक्टर्स। आउटपुट के अंदर यू कैन इंसर्ट द कैरेक्टर्स। आई थिंक दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर, राइट? सो 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने सिंबल भी डाल दिए। अब नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट, ओके? तो अभी नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है? सो फर्स्ट आई विल बी इंसर्टिंग। तो अभी फर्स्ट क्या आ रहा है? एट द फर्स्ट लाइन ए आ रहा है, राइट? ए क्या है? कैरेक्टर है। कैरेक्टर होगा तो क्या ना मैं इसको स्टैक में इंसर्ट कर सकती हूँ? नो। तो मुझे इंसर्ट कहाँ पे करना पड़ेगा? आई नीड टू इंसर्ट दिस इनटू द आउटपुट। सो मैं ए कहाँ पे इंसर्ट करने वाली हूँ? आई विल बी इंसर्टिंग ए इनटू द आउटपुट, राइट? रीड द नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन पे क्या जा रहा है? मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्या है? ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर में कहाँ पे इंसर्ट करूंगी? तो ऑपरेटर आई एम गोइंग टू इंसर्ट इनटू द स्टैक। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट। आप स्टैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटर इंसर्ट कर सकते हो, और आउटपुट के अंदर यू कैन इंसर्ट ऑपरेंड्स एज वेल एज ऑपरेटर। ऑपरेटर स्टैक में से कैसे निकालना है वी विल सी, ओके?
सो मल्टीप्लीकेशन आया है, मल्टीप्लीकेशन इट इज एन ऑपरेटर, तो वो मैंने स्टैक के अंदर इंसर्ट कर दिया. नेक्स्ट आई विल जस्ट स्कैन द सिंबल एंड दैट सिंबल इज अ बी. Okay, and as this is the symbol, I'm not able to, okay, you are not able to insert this into the stack. तो ये b कहाँ पे जाएगा? तो b जाएगा आउटपुट के अंदर. Always remember, इसका भी एक स्टैक बनेगा. ये जो आउटपुट आप लोग देख रहे हो, इसका भी एक क्या बनेगा? स्टैक बनेगा. और जो सबसे पहले आप लोगों ने इंसर्ट किया था, वो ऑपरेंट सबसे नीचे जाएगा. सो a आ गया. a के बाद में अब कौन सा आ रहा है? b आ रहा है. तो b कहाँ पे इंसर्ट होगा? तो b इंसर्ट होगा इसके ऊपर. ओके, B will be inserted above A. और यहाँ पे अगर आप लोगों को B लिखना होगा तो B कहाँ पे लिखोगे? तो B लिखोगे towards the right hand side. ये लेफ्ट में नहीं लिखना है. ओके, ये लेफ्ट में नहीं लिखना है. It should be towards the right. ओके, नेक्स्ट क्या आ रहा है? अभी देखो, तो नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास प्लस. मैं ऑपरेटर का भी एक स्टैक बना लेती हूँ. आई एम ऑल्सो क्रिएटिंग वन स्टैक फॉर द ऑपरेटर्स. दिस इज फॉर द ऑपरेंड एंड दिस इज फॉर द ऑपरेटर. ओके, ऑलरेडी मेरे पास स्टैक के अंदर क्या है? तो ऑलरेडी आई एम हैविंग द मल्टीप्लिकेशन. नेक्स्ट सिंबल कौन सा आ रहा है? तो नेक्स्ट सिंबल आ रहा है प्लस. ओके, अभी ये चीज सभी लोग बहुत अच्छे से सुन लेंगे, राइट? यहाँ पे आ रहा है प्लस. अभी यहाँ पे ना यहाँ पे देयर इज अ ट्विस्ट. ओके, स्टोरी में ट्विस्ट है. तो अब स्टोरी में ट्विस्ट क्या है? तो कभी भी स्टैक के अंदर टॉप ऑफ द स्टैक जो होगा, वो टॉप ऑफ द स्टैक में लोअर प्रायोरिटी वाला, लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं रह सकता है. ओके, अगर मेरे पास कोई हायर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर ऑलरेडी स्टैक के अंदर है, तो उसके ऊपर कोई भी लोअर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं रह सकता है. ओके, बड़े पे छोटा नहीं चलेगा. ओके, बड़ा वाला जो प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होता है, उसके ऊपर छोटा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं चलेगा. और हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लिकेशन का जो प्रेसिडेंस है, वो प्रेसिडेंस प्लस से ज्यादा है. ओके, तो अभी क्या करना है? अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन आप लोगों को मिल जाती है, whenever you encounter something like that, तो इस चीज में क्या करना है? तो ये एल्गोरिदम ऐसा कहता है कि whenever you came across something like that, then you need to pop the operator first. जो पहला ऑपरेटर आप लोगों के पास था, you need to pop that operator. ओके, प्लस आने से पहले मेरे पास क्या था? तो प्लस आने से पहले मेरे पास था मल्टीप्लिकेशन. तो ये क्या बोल रहा है? तो you need to pop out the multiplication first and then you can insert the plus operator into the stack. मैं अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये. ओके, सी again we will just draw one stack and then again I will explain. Okay, तो ऑपरेटर्स का भी क्या बनता है? एक स्टैक बनेगा. तो ये ऑपरेटर का मैंने एक स्टैक बना लिया. और अगर आप पहले से देख रहे हो तो राइट नाउ स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, एक ही ऑपरेटर है, एंड दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन. राइट, अभी क्या हो रहा है? वी आर एट दिस लाइन. राइट, हम लोग ये प्लस वाले लाइन के ऊपर है. तो अभी प्लस को इंसर्ट होना है, और अगर प्लस को इंसर्ट होना है तो वो स्टैक के अंदर ही जाएगा. तो क्या बोलता है एल्गोरिदम? क्या बोलता है कि कोई भी टाइम पे आप लोग ये नहीं कर सकते हो कि टॉप ऑफ द स्टैक में कम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं आना चाहिए. स्टैक के ऊपर टॉप ऊपर कभी भी स्मॉलर प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर नहीं आना चाहिए. अगर मैं मेरे लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं सिंपल इतना ही बोलूंगी कि बड़े वाले पे छोटा वाला नहीं चलेगा. तो बड़ा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर कौन सा है आपके पास? अभी राइट नाउ यू आर हैविंग द मल्टीप्लिकेशन. तो क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू पॉप आउट दिस मल्टीप्लिकेशन. तो सबसे पहले मुझे ये क्या करना पड़ेगा? आई नीड टू पॉप आउट. और ये पॉप आउट करके मैं कहाँ पे डालूंगी? इनटू द आउटपुट. ओके, मैं कहाँ पे डालने वाली हूँ? ये मल्टीप्लिकेशन को पॉप आउट करके इनटू द आउटपुट. और उसके बाद में आई कैन इंसर्ट द प्लस ऑपरेटर इनटू द स्टैक. और उसके बाद में मैं प्लस ऑपरेटर जो होगा वो ऑपरेटर आई कैन इंसर्ट. तो अभी यहाँ पे क्या करूंगी मैं? सबसे पहले आउटपुट के अंदर आई एम राइटिंग द आउटपुट लाइक ए, राइट, बी, और उसके बाद में आई एम पॉपिंग. राइट, पॉप कौन सा हो रहा है? ऑलरेडी जो मेरे पास जो था वो मेरे पास ऑलरेडी क्या था? मल्टीप्लिकेशन. सो आई एम गोइंग टू पॉप आउट द मल्टीप्लिकेशन. और ये पॉप आउट हो जाएगा. उसके बाद में आई एम एबल टू इंसर्ट दिस प्लस इनटू द स्टैक. ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई गेटिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, अभी again read the next symbol. Right, what is the next symbol? Next symbol is the C. अब C कहाँ पे इंसर्ट होगा? तो C इंसर्ट होने वाला है into the output. राइट, C इंसर्ट होगा into the output. आउटपुट ने सेम फैशन में लिखना है. B के ऊपर क्या आएगा? मल्टीप्लिकेशन. और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर क्या आएगा? अभी C आएगा. ओके, आई एम जस्ट राइटिंग दिस पार्ट आल्सो साइड बाय साइड. की लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट
just to understand. So A, right? B, then we are having the multiplication. Then we just try to understand this as a multiplication. Huh? And next we are having the C. Okay. अभी ये C तो यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर वाला जो ऑपरेटर था, आई एम कंटिन्यूइंग विद दैट. अभी देखो, अभी क्या हो रहा है, तो आपके पास ऑलरेडी क्या है, लेफ्ट में बना रही हूँ मैं, मेरे पास ना ऑलरेडी प्लस है. आई एम हैविंग द प्लस ऑपरेटर इनटू द स्टैक, राइट. अभी कौन सा ऑपरेटर आने की कोशिश कर रहा है, अभी जो नेक्स्ट ऑपरेटर आ रहा है ना, वो है आपका डिवीजन. और डिवीजन का प्रेसिडेंस जो है वो प्लस से ज्यादा है या कम है? प्रेसिडेंस जो है डिवीजन का ज्यादा है, ज्यादा है. तो अभी यहाँ पे एक बात याद रखना कि छोटे पे बड़ा चलेगा, बड़े पे छोटा नहीं चलेगा. अभी कोई छोटा प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर होगा तो उस पे बड़ा चलने ही वाला है. तो प्रेसिडेंस जो डिवीजन का है वो ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे ये इंसर्ट कर सकती हूँ. आई कैन इंसर्ट. तो अभी मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. इसको इंसर्ट करना है, मतलब कहाँ पे इंसर्ट होगा ये, तो स्टैक के अंदर इंसर्ट होगा. सो प्लस और इसके बाद में जाएगा आपका डिवीजन, और ये दिस थिंग विल बी द कंटिन्यू ए बी मल्टीप्लिकेशन एंड द सी. और लास्ट में क्या जा रहा है, द लास्ट ऑपरेटर, द लास्ट सिंबल, इट इज अ डी सिंबल. डोंट डू दिस. द लास्ट सिंबल इज अ डी. ओके, लास्ट सिंबल इज अ डी. अभी ये सिंबल है, ये कैरेक्टर है, राइट. तो ये कहाँ पे जाएगा, तो वो जाएगा आपके आउटपुट के अंदर. सो आई एम अगेन राइटिंग दिस पार्ट, ए बी, राइट. Then we are having the multiplication and then we are having the C. और C के बाद में क्या जाने वाला है आपका, तो D जाएगा. और स्टैक के अंदर जो भी वैल्यूज थी, आई एम अगेन रिपीटिंग द सेम वैल्यूज, दैट इज अ प्लस एंड डिवीजन. अभी क्या करना है, अभी कोई भी कैरेक्टर, कोई भी सिंबल बाकी है नहीं है. ओके, वी आर डन विद ऑल द सिंबल्स, राइट. तो अभी क्या करना है, तो स्टैक के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स हम लोगों को क्या करना है, तो पॉप आउट करना है. तो पॉप आउट करना है तो पहले कौन सा पॉप आउट होगा, प्लस पॉप आउट होगा या डिवीजन पॉप आउट होगा? डिवीजन. डिवीजन. वाई डिवीजन? बिकॉज स्टैक के अंदर टॉप के ऊपर जो एलिमेंट होगा वही डिलीट होने वाला है, राइट. सबसे पहले यहाँ पे क्या जाएगा, डिवीजन जाएगा. और डिवीजन के बाद में यहाँ पे क्या जाने वाला है, प्लस जाएगा. अगर ये किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन जस्ट रेफर दिस डायग्राम. हाँ, यू कैन जस्ट रेफर दिस डायग्राम. ये स्टैक वाला डायग्राम है. इसके अंदर टॉप पे क्या जा रहा है, तो टॉप पे है आपका डिवीजन. सो सबसे पहले डिवीजन डिलीट होगा और उसके बाद में प्लस आपका डिलीट होगा. एंड दिस इज द लास्ट आंसर. दिस इज द लास्ट आंसर. ओके, तो इनफिक्स एक्सप्रेशन का a मल्टीप्लिकेशन b प्लस c डिवाइडेड बाय d का पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या है, तो a b मल्टीप्लिकेशन c d डिवाइडेड बाय एंड द प्लस. अभी भी किसी को यहाँ पे डाउट होगा तो डोंट वरी. We are going to solve one more. Okay, we are going to solve one more example on this, so don't worry about that. जिनको समझ में आ गया है, it's very good. You can just start solving the next question. But जिनको समझ में नहीं आ रहा है, again we will just see the next example, right? This is the same example that I have taken. ये सेम एग्जांपल है जो हम लोगों ने देखा था ऊपर वाला, a मल्टीप्लिकेशन b प्लस c डिवीजन d. ओके, आंसर क्या आ रहा है, वही आ रहा है जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया था. अभी ट्राई टू सॉल्व दिस वन. यस मैम, जो मैंने आपको चैट में लिखा था वो राइट है? लेट मी चेक. हाँ, CD division AB multiplication. You have just written this in a wrong fashion. Okay, this is not the correct way. It is not like that. उसमें भी मतलब सेम ही हो रहा है कि मैं कि CD का लेकिन उसका जो फॉर्म होता है ना, that form always should be something like that. Okay, वो जो आपने लिखा है उस फैशन में नहीं होगा. Okay. आपने वो डायरेक्ट सॉल्व किया ना? हाँ. वो भी एक तरीका होता है, बट वी आर सीइंग डेटा स्ट्रक्चर्स, राइट. तो हम लोगों को डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक के हेल्प से ही इसको सॉल्व करना पड़ेगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 5 मार्क्स के लिए बहुत बार पूछा जाता है. अभी चलो हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आप देख सकते हो कि देयर आर सम ब्रैकेट्स एज वेल. ओके, वहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स भी है. अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ये एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेना, उसके बाद में यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन. हाँ, क्या करना है, जो भी क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, सिंबल, स्टैक एंड द आउटपुट. ओके, सिंबल में क्या करूंगी, तो सिंबल में आई विल इंसर्ट ईच एंड एवरी सिंबल लाइन बाय लाइन. तो मैंने जो भी सिंबल लिखे थे मैंने लाइन बाय लाइन मैंने डाल दिए. स्टैक के अंदर व्हाट आई कैन इंसर्ट ओनली एंड ओनली ऑपरेटर्स, और ऑपरेंड्स कहाँ पे जाएंगे, इन द आउटपुट. ओके, तो स्टार्ट रीडिंग द सिंबल. मैं सिंबल रीड करने का स्टार्ट कर रही हूँ. तो फर्स्ट सिंबल इज ए.
एंड ए इज अ कैरेक्टर, तो ये कहाँ पे जाएगा, आउटपुट के अंदर। नेक्स्ट मेरे पास क्या मिला है मुझे, तो मल्टीप्लीकेशन मिला है। सो मल्टीप्लीकेशन इट इज एन ऑपरेटर, तो ऑपरेटर कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर। सो मैंने डाल दिया यहाँ पे स्टैक के अंदर ऑपरेटर, और ए मैंने एज इट इज लिख लिया। अभी नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका कर्ली ब्रेस, ओके सॉरी द राउंड ब्रैकेट, राइट। और हम लोगों को पता है कि राउंड ब्रैकेट का प्रेसिडेंस, राइट, सबसे ज्यादा होता है। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से भी ज्यादा आप लोगों का ब्रैकेट का प्रेसिडेंस होता है। तो इसका मतलब मेरे स्टैक के अंदर सपोज आई एम हैविंग समथिंग लाइक दैट इनटू द स्टैक, मेरे पास ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन है, और अगर नेक्स्ट ऑपरेटर जो आ रहा है वो ब्रैकेट होगा, तो मैं डाल सकती हूँ। क्यों डाल सकती हूँ, बिकॉज छोटे पे बड़ा चलेगा, राइट। अगर छोटा प्रेसिडेंस वाला है तो उस पर बड़ा चलने ही वाला है। सो आई एम इंसर्टिंग, तो यहाँ पे भी मैंने स्टैक के अंदर एलिमेंट इंसर्ट कर दिया, और सिंबल आउटपुट जो है आई एम जस्ट कंटिन्यूइंग विद दैट। नेक्स्ट रीड द नेक्स्ट सिंबल, इट इज बी। बी क्या है, कैरेक्टर है, तो बी कहाँ पे जाएगा, इनटू द आउटपुट। सो आउटपुट में डाल दिया। स्टैक वाला जो पोर्शन है वो आप लोगों को एज इट इज रखना है, राइट। रीड द नेक्स्ट ऑपरेटर, ओके। तो नेक्स्ट ऑपरेटर कौन सा है आपका, प्लस। अभी अभी आप बोलोगे कि मैडम प्लस का जो प्रेसिडेंस है वो प्लस का प्रेसिडेंस तो इससे कम है, राइट। और अब तक हम लोगों ने देखा कि अगर कम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर टॉप ऑफ द स्टैक में आ रहा है तो इट इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पे अलाउड कैसे हो गया, ओके। तो ये एल्गोरिदम में ऐसे बोला गया है कि व्हेनेवर यू कम अक्रॉस द ओपनिंग ब्रैकेट, राइट, तो उसके बाद में जितने भी ऑपरेटर्स है वो सारे के सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को कंटिन्यूअसली ऐड करने ही है, ओके। जब तक आप लोग इसको कोई भी क्लोजिंग ब्रैकेट आप लोगों को नहीं दिखता है, एट दैट पॉइंट यू हैव टू कंटिन्यूअसली ऐड द ऑपरेटर इनटू द स्टैक। Again, I will repeat, whenever you encounter any opening bracket, right, then the operator after this opening bracket you need to insert into the stack until and unless you come across the closing bracket, right। तो अभी मुझे क्या मिला है, मुझे प्लस मिला है, तो मैं प्लस डाल दूंगी, इट इज अलाउड। ये एल्गोरिथम में दिया है, राइट। तो मैंने प्लस आई हैव इंसर्टेड। नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका सी। अभी सी क्या है, सी इट इज अ कैरेक्टर, राइट। ये कैरेक्टर कहाँ पे जाना चाहिए, आउटपुट के अंदर, तो ये मैंने डाल दिया कैरेक्टर आउटपुट के अंदर। अभी नेक्स्ट क्या आ रहा है, तो नेक्स्ट आ रहा है आपका क्लोजिंग ब्रैकेट। अभी क्लोजिंग ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये ब्रैकेट यू नीड टू इंसर्ट इनटू द स्टैक, ओके। यहाँ पे मैंने प्लस डाल दिया, और प्लस के ऊपर मेरा क्या आ रहा है, तो प्लस के ऊपर आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, ओके। अब ये एल्गोरिथम में और एक बात बोलिए कि जब भी कभी आप लोगों को ऐसा कुछ भी मिलेगा, ओपनिंग ब्रैकेट, उसके अंदर कोई ऑपरेटर और क्लोजिंग ब्रैकेट, तो इसके अंदर जो भी ऑपरेटर्स होंगे वो ऑपरेटर्स आप लोगों को डायरेक्टली पॉप आउट करना है, ओके। इसके अंदर जो भी ऑपरेटर होगा यू नीड टू पॉप आउट दैट ऑपरेटर। तो इसके अंदर कौन सा ऑपरेटर आ रहा है, प्लस आ रहा है, इसको कट मारनी है आप लोगों को और इसको पॉप आउट करना है इनटू द आउटपुट, ओके। तो अभी प्लस को क्या कर दूंगी मैं, तो प्लस को आई हैव पॉप आउट, और मैंने उसको कहाँ पे लिख दिया, आई हैव रिटन दिस इनटू द आउटपुट, ओके। देखो अगेन आई विल रिपीट, अगर कभी भी एल्गोरिदम के अंदर यू एनकाउंटर समथिंग लाइक दैट, ओके, आप लोगों को कभी भी ओपनिंग ब्रैकेट आ रही है, तो ओपनिंग ब्रैकेट के बाद में जो भी ऑपरेटर्स आते हैं वो सारे के सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को इंसर्ट करने हैं इनटू द स्टैक। कब तक इंसर्ट करने हैं, तब तक इंसर्ट करना है जब तक आप लोगों को क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता। और जब भी कभी आप लोगों को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाता है, तब उसके अंदर जो भी कोई एलिमेंट्स होंगे, जो भी ऑपरेटर्स होंगे, उनको आपको पॉप आउट करना है, राइट। अभी यहाँ पे देखो आप लोग, प्लस था और मल्टीप्लिकेशन था, तो बॉटम में क्या था, प्लस था, टॉप पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले डिलीट कौन सा होगा, तो सबसे पहले डिलीट होगा मल्टीप्लिकेशन, और मल्टीप्लिकेशन के बाद में डिलीट होगा प्लस। ये कुछ बातें हैं, ये हमेशा याद रखना, हाँ। जो टॉप में होगा वो ही फर्स्ट में डिलीट होने वाला है। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैं निकालूंगी मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद में आई कैन डिलीट द प्लस ऑपरेशन, ओके। सो यहाँ पे मुझे क्या मिला, मुझे ओपनिंग ब्रैकेट मिली, मुझे उसके अंदर ऑपरेटर मिला, मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिली, तो व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट डिलीट दिस पार्ट एंड आई विल पॉप आउट द ऑपरेटर। तो मैंने यहाँ पे पॉप आउट कर दिया। अभी देखो नेक्स्ट क्या जा रहा है, तो नेक्स्ट आप लोगों को मिल रहा है डिवीजन, ओके। आप लोगों को क्या मिल रहा है, डिवीजन मिल रहा है। नाउ देयर इज अगेन ट्विस्ट, ओके। अब यहाँ पे क्या बोलता है, अगर कोई भी दो ऑपरेटर्स है विद द सेम प्रेसिडेंस, whenever you encounter with the two operators with the same precedence, right, तो वो एक ही बार में
वो स्टैक के अंदर नहीं रह सकती है। हम लोग बोलते हैं ना कि एक कवर के अंदर दो तलवारें नहीं रहती है, तो सिमिलर है। अगर अगर आपके स्टैक के अंदर दो ऑपरेटर्स आ रहे हैं, दो ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस सेम है, तो वो नहीं रह सकते। तो इस कंडीशन में भी क्या करना है, जो ऑलरेडी आपके पास ऑपरेटर था उसको डिलीट कर देना है, और जो न्यू ऑपरेटर आ रहा है उसको आप लोगों को इंसर्ट कर देना है। तो ऑलरेडी मेरे पास कौन सा ऑपरेटर था प्लस को डिलीट करने के बाद में, तो मेरे पास था मल्टीप्लीकेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, तो मैं मल्टीप्लीकेशन को मैं रिमूव कर दूंगी, और उसके बाद में आई कैन इंसर्ट दिस डिवीजन ऑपरेटर। ओके, अभी तक ना मैंने बहुत सारे रूल्स बोले। पहला रूल याद रखना कि छोटे बड़े वाले पे ना छोटा नहीं चलेगा। सेकंड रूल, छोटे वाले पे बड़ा चलता है। थर्ड चीज, अगर सेम प्रेसिडेंस वाला ऑपरेटर आ रहा है तो आप लोगों को जो पहला ऑपरेटर होगा उसको रिमूव कर देना है, राइट। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, व्हेनेवर जब भी कभी आप लोगों को कोई भी ओपनिंग ब्रैकेट मिलती है तो उसके बाद में जितने भी ऑपरेटर्स आते हैं वो सारे ऑपरेटर्स आप लोगों को स्टैक के अंदर इंसर्ट करने हैं। कब तक इंसर्ट करने हैं, जब तक आप लोगों को उसका कोई क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता, तब तक यू नीड टू जस्ट इंसर्ट। और जब भी कभी आपको और जब भी कभी आप लोगों को क्लोजिंग ब्रैकेट मिल जाएगा, तब आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको आप लोगों को डिलीट करना पड़ेगा। डोंट वरी, वी आर गोइंग टू सॉल्व वन मोर एग्जांपल। ओके, बहुत सारे एग्जांपल्स है, वी हैव टू सॉल्व दिस। तो डिलीट कैसे होता है, रिमूव कैसे होता है। ओके, यहाँ पे ना मैं एक सिर्फ नॉर्मल आपको बताती हूँ, नॉट गोइंग विथ एनी एग्जांपल और समथिंग लाइक दैट। आई थिंक यहाँ पे अभी बाकी कुछ है नहीं समझाने के लिए। डी जाएगा आप लोगों का आउटपुट के अंदर, और उसके बाद में जो लास्ट मेरा ऑपरेटर था वो ऑपरेटर डिलीट होगा। ओके, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन, वी आर हैविंग ओनली 5 मिनट्स। आई थिंक लेक्चर खत्म कब होगा, 12:50 ना? 1:50। ओके ओके ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, मैं सब अभी ये रिमूव कर रही हूँ और मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, यू नीड टू आंसर। हाँ, राइट नाउ सपोज मेरे पास एक स्टैक है, और ये स्टैक के अंदर आई एम ऑलरेडी हैविंग द प्लस ऑपरेटर। दिस इज द फर्स्ट रूल। हाँ, प्लस ऑपरेटर मेरे पास ऑलरेडी है, तो ये प्लस के ऊपर जो न्यू ऑपरेटर जा रहा है, दैट न्यू ऑपरेटर इज अ मल्टीप्लीकेशन। आई वांट टू इंसर्ट अ मल्टीप्लीकेशन। आप लोग इसके अंदर मल्टीप्लीकेशन इंसर्ट कर सकते हो? Yes, कैन यू ma'am. इंसर्ट ma'am. Yes, मल्टीप्लीकेशन? ma'am. Yes. Why? Yes, ma'am. Because छोटे पे बड़ा चलेगा, and ये बड़ा multiplication चलेगा। is having the highest precedence, right? So you can insert this multiplication into the stack. So this is allowed. Now the second thing, चलो मेरे पास ऑलरेडी स्टैक है, और स्टैक के अंदर व्हाट आई एम हैविंग, तो स्टैक के अंदर आई एम हैविंग द मल्टीप्लिकेशन, राइट। और ये मल्टीप्लिकेशन पे ना अभी नेक्स्ट जो सिंबल जा रहा है, जो ऑपरेटर जाने वाला है, दैट इज दिस सब्ट्रैक्शन, राइट। तो ये जाएगा क्या स्टैक के अंदर? नहीं, Yes, No, नहीं ma'am. जा नहीं जाएगा। no, ma'am. नहीं जाएगा। was saying no, yes please, ये नहीं जाता है। क्यों नहीं जाता है? बिकॉज बड़े पे छोटा नहीं चलेगा, एंड बड़ा वाला कौन है हमारे पास? मल्टीप्लीकेशन वी आर हैविंग, सो यू कांट इंसर्ट दिस सब्ट्रैक्शन, राइट। तो इस चीज में क्या होगा, तो रिमूव करना पड़ेगा। क्या रिमूव करोगे? जो स्टैक के अंदर ऑलरेडी जो आप लोगों के पास ऑपरेटर होगा वो रिमूव होगा, तो मल्टीप्लिकेशन रिमूव करना है। और मल्टीप्लिकेशन रिमूव करने के बाद आप लोगों को प्लस सब्ट्रैक्शन क्या करना है, सब्ट्रैक्ट यू नीड टू इंसर्ट इनटू द स्टैक। ओके, आई एम गेटिंग दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, अभी द Yes, नेक्स्ट ma'am. एग्जांपल, नेक्स्ट थिंग, मेरे पास ना अभी कुछ ऐसा आ जा रहा है, कर्ली ब्रेस ओपन हो रहा है, सॉरी द राउंड ब्रैकेट ओपन हो रहा है, राउंड ब्रैकेट के अंदर आई एम हैविंग द प्लस, और प्लस के नो सॉरी आई एम हैविंग मल्टीप्लिकेशन। ओके, और ये मल्टीप्लिकेशन पे नेक्स्ट जो सिंबल जाने वाला है वो है सपोज प्लस, ये जाएगा या मल्टीप्लिकेशन डिलीट होगा? आई गेटिंग माय क्वेश्चन? ऐड हो जाएगा। Multiplication जाएगा। का क्यों ऐड होगा? क्यों ऐड होगा? कर्ली ब्रेसेस के अंदर सब ऐड है। यस, जो अगर आप लोगों को कोई भी राउंड ब्रैकेट मिल रहा है ना, तो उसके अंदर आप लोगों को प्रेसिडेंस नहीं देखना है। जब तक आप लोगों को कोई भी ऐसा वाला क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं मिलता है, तब तक आप लोगों को कंटिन्यूअसली ऐड ही करना है, राइट। तो इसमें प्लस आएगा, माइनस आएगा, इस पे कुछ भी आएगा, यू नीड टू इंसर्ट, दैट्स इट। ओके, एंड द लास्ट वन, जो लास्ट रूल हम लोगों ने देखा था, आई थिंक वी हैव डन विद दैट। ओके, वी हैव डन विद दैट। अभी यहाँ पे किसी ने मुझे क्वेश्चन किया था कि मैडम रिमूवल वाला राइट, मतलब रिमूव कौन सा समझाना है? रोल नंबर व्हाट इज 80? ओके, व्हिच वन? हेलो मैम, हाँ हेलो। आपने जो नीचे वो
स्टार में से डिवीजन में आ गए ना हम लोग। हाँ डिवीजन में, यह वाला, हाँ हाँ ये रोक, हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। हाँ ओके सी, ये पता चल गया कि ये मैंने डिलीट क्यों किया है। हाँ वो ओके चलो, तो अभी नेक्स्ट सिंबल कौन सा आ रहा है, डिवीजन आ रहा है, तो मैंने डिवीजन कहाँ पे इंसर्ट कर दिया, स्टैक के अंदर। उसके बाद में न्यू सिंबल कौन सा आ रहा है, डी आ रहा है, डी कहाँ पे जाएगा, स्टैक के अंदर, सॉरी आउटपुट के अंदर जाएगा, और हो गया। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका ए बी सी प्लस मल्टीप्लीकेशन डी, तो लास्ट में स्टैक के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट डायरेक्टली डिलीट होगा, और वो एलिमेंट कौन सा डिलीट होने वाला है, दैट इज द डिवीजन। ओके अभी सपोज आप लोगों के पास ओके मैम। ऐसा था, स्टैक के अंदर आप लोगों के पास ऐसे कुछ था, प्लस था, उसके बाद में आप लोगों के पास ये मल्टीप्लिकेशन था। अभी बोलो मुझे कि इनमें से डिलीट कौन सा होगा फर्स्ट। स्टैक के अंदर राइट नाउ यू हैविंग प्लस और उसके ऊपर है मल्टीप्लिकेशन, तो पहले डिलीट कौन सा होगा इस केस में, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लिकेशन। वेरी गुड, व्हाई, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन इज ऑन द टॉप और प्लस कहाँ पे है, बॉटम में। ओके अभी Yes, ma'am. I think we have to stop because मेरी लैब भी है, but in the next lecture again मैं यही से स्टार्ट करने वाली हूँ। लेकिन अगर किसी को सॉल्व करने की इच्छा हो रही है तो just let me share the new screen and you can just solve the questions. Okay? जिनको नहीं समझ में आ रहा है डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में भी मैं यही से स्टार्ट करने वाली हूँ। सो नहीं समझ में आ रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट मी जस्ट ओके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। Okay, just take the screenshot of this and you can just convert this infix expression to the postfix. At least you can try, right? Try कर सकते हो, ये try करके देखना आप लोग। These are the two questions and if you want me to share the answers of this तो मुझे बता देना, I will share. Okay? और अभी Okay, कोई ma'am. लीव नहीं करेगा, मेरा अटेंडेंस बाकी है, just give me 2 minutes. Okay, आप लीव कर सकते हो। हाँ, और अगर किसी को प्रॉब्लम होगा यू कैन आस्क। ओके, रोल नंबर 2 हैव सम डाउट या गलती से हो गया। ओके चलो, आई एम एंडिंग द मीटिंग।